A very good morning to all of you. This is Dr. Nisha Varade, Assistant Professor, Department of Zoology and Coordinator, Swami Vivekananda Study Center and Counseling Cell, Shankarlal Khandelwal College, Akola, live from SKC Studio. First of all, I pay my humble tribute to Ma Jijau and Swami Vivekananda on their birth anniversaries. Undoubtedly, Swami Vivekananda fostered new enthusiasm for progress among the youth. So much so that the whole country celebrates his birth anniversary as National Youth Day. And today, we all have gathered here on this virtual platform to celebrate this day and also for the inauguration of add-on course on life skills for self-empowerment, jointly organized by Swami Vivekananda Study Center, Counseling Cell, and NSS unit of our college. On behalf of the whole organizing team, I feel privileged to welcome Honorable Taratai Hatwalne, President, Shikshan Prasarak Mandal, Akola, Honorable Chief Guest, respected Swami Shri Tanmayananda ji, Secretary Shri Ramakrishna Vivekananda Seva Ashram, Ambikapur, Chhattisgarh, respected Gopalji Khandelwal, Secretary, respected Chaure Sir, Vice President, Honorable Arunji Kulkarni Sir, Treasurer, and all respected members of Shikshan Prasarak Mandal Akola, respected Dr. Jagdish Ji Sabu Sir, Principal, Shankarlal Khandelwal College, Akola, Professor Dr. Aarti Deshpande Madam, Add-on Course Committee Coordinator, Shankarlal Khandelwal College, Akola, and all the respected parents, staff members, and students who are with us live on YouTube. Every year, India celebrates National Youth Day on January 12th. This date was chosen to honor the birth anniversary of Swami Vivekananda, one of India's greatest youth icon, philosopher, thinker, social reformer, and spiritual leader. What makes Swami Vivekananda the ideal role model for the youth is the fact that he motivated the youth to be strong in body, mind, and spirit. He strongly advocated their role in nation building, as today almost 50% of India's population is under the age of 25 and the future of the country rides on their shoulders. He envisioned India as a country with energetic young people who will shape up a modern nation based on the foundation of Vedic spiritual ideals. He saw hope for the future in every youth and believed that with muscles of iron and nerves of steel, they could bring about social change. Swamiji himself personified the eternal energy of the youth. I once again welcome you all in this National Youth Day and Youth Week celebration organized by Swami Vivekananda Study Center, NSS Unit, and Counseling Cell of Shankarlal Khandelwal College, Akola. Now, I would like to invite respected Dr. Sabu Sir, Principal of our college, for his introductory remarks on this platform. Over to you, Dr. Sabu Sir. Good morning, everyone. Honorable Chief Guest, respected Swami Sri Tanmayananda ji, Secretary Sri Ramakrishna Vivekananda Seva Ashram, Ambikapur, Chhattisgarh, all honorable members of management, teaching and non-teaching staff members of our college, and my dear students. We, all of us are here to celebrate National Youth Day, Youth Week, and inauguration of add-on course on life skills for self-empowerment organized by Swami Vivekananda Study Center, Counseling Cell, and NSS unit of this college. At very outset, I would like to inform you that today is not only the birth anniversary of Swami Vivekananda ji, but it is also the birth anniversary of the great lady, Ma Jijau from Vidarbha, who has given birth to the great Maratha warrior, Chhatrapati Shivaji Maharaj. So at the very outset, I pay my humble tribute to both of them. Dear students, as you all know, India celebrates National Youth Day on January 12th every year. In 1984, it was declared by the government of India that 12th January, being the birth anniversary of Swami Vivekananda ji, will be observed as National Youth Day, and since then, we celebrate it every year. The motive behind the government's move to celebrate this day was to imbibe in students and youth the philosophy and ideals of Swami Vivekananda,
who brought a change in the thought process of youth. Before proceeding further, being the principal of the college, it is my prime duty to inform you all about Swami Vivekananda Study Center at our college. The Center for Vivekananda Study Center was established by we people with the sanction of UGC as a part of 12th plan in its scheme of establishing center to commemorate the epoch-making social thinkers of India in session 2013-14. To disseminate the knowledge about our great cultural heritage, the center initiated various activities including certificate course, lectures and seminars with a special focus on Swami Vivekananda, who was its luminary. The center also undertake fieldwork based based extension activities to disseminate the ideas of Swami Vivekananda ji. Today, COVID-19 pandemic has resulted in severe economic and social impact around the world. Looking at the current state of our country, Swamiji's teachings are most relevant today. While our country witnessed immense progress after independence and became self-reliant in many areas, our youth still needs to be encouraged towards his duties to the nation and the humanity. Young people can play a key role in management of this outbreak and the recovery following the outbreak. Swami Vivekananda believed that education is the manifestation of perfection already in man. He thought it a pity that existing system of education did not enable a person to stand on his own feet, nor did it teach him self-confidence and self-respect. To Vivekananda, education was not only collection of information, but something more meaningful. He felt education should be man-making, life-giving, and character-building. Dear students, I am glad that under Swami Vivekananda Study Center of our college, 2 certificate courses on Swami Vivekananda's philosophy and life skills for self-empowerment are running successfully. These courses will help you in honing and mastering the skills that are needed for a fruitful life. We all want to live full productive lives, but sometimes we just don't know where to begin. Depending on the problem, what seems to work for one person may not necessarily work for everyone. There are so many different programs, strategies, and techniques that it's hard to choose the right one. One thing, however, is certain. If we want to accomplish anything in life and realize our full potential, we must need life skills like decision making, creative thinking, balancing emotions, etc. In order to excel at a job, a sport, or any discipline, a person must acquire and master these life skills. Living life fully and productively with possessing life skills enable one to deal with life's inevitable difficulties and adversities more effectively. This center and courses under this center aim to enhance your life skills and to develop your overall personality to live happier and more productive life. Dear students, I am glad that during this pandemic situation, we are virtually celebrating National Youth Day and Youth Week. And for that, I once again congratulate Swami Vivekananda Study Center, Counseling Cell, and NSS unit of our college. I also acknowledge the efforts taken by Add-on Course Committee Coordinator Dr. Aarti Deshpande and Course Coordinator Dr. Nisha Varade and her team for designing and implementing these courses on life skills under SVSC. So, once again,
I welcome all of you here in this program, and I am very thankful to the chief guest, Swami Tanmayanandji, who has spared his valuable time to preach you. Thank you very much. Thank you, sir. It is our honor to have respected Dr. Taratai Hathwalne, President, Shikshan Prasarak Mandal Akola, with us today. May I now request Honorable Taratai for her greetings on this occasion. Over to you, Taratai. नमस्कार। एनएसएस और स्वामी विवेकानंद स्टडी सेंटर के संयुक्त कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आज स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ दिन है। इस शुभ अवसर पर उनके प्रबुद्ध विचारों का स्मरण करना तथा उन्हें अपनाने का प्रयास करना, इस उद्देश्य से हम सब यहाँ उपस्थित हैं। आपको स्वामी जी के उच्च विचार विद्वज्जनों से सुनने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इसका लाभ उठाओ, उन अमूल्य विचारों को आचरण में लाने का प्रयास करो, तो आप भी एक समर्थ व्यक्ति बन सकते हैं। आज का यह कार्यक्रम निश्चित ही आप में, आपके विचारों में अच्छा परिवर्तन लाएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद ताई. आपण आपले शब्द बियाण्यासारखे विखुरलेले आहेत. बियाणे कितीही छोटे असले तरीही जर त्यास एखादा अनुकूल जमीन सापडली तर ती त्याची शक्ती उलगडतेच. पुन्हा एकदा धन्यवाद ताई. स्वामी विवेकानंदा will always be remembered for his inspiration to the mankind. He taught us unconditional love, reinforced the importance of giving back, and taught us how to be a better person. Thank you once again for your constant encouragement, motivation, guidance, and support. Now, I would like to request Professor Dr. Aarti Deshpande Madam, Add-on Course Committee Coordinator, for her remarks on this occasion of inauguration of Add-on Course on Life Skills for Self-Empowerment. Chief guest of today's occasion, Pujaniya Swami Tanmayananda ji, all the dignitaries of Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Taratai, Honorable Gopal ji, our principal respected Sabu sir, SVSC coordinator Dr. Nisha Varade madam, the members of organizing committee of this program, and my dear friends. Today is an auspicious occasion of celebration of birth anniversary of Swami Vivekananda ji. And we are blessed with the divine presence and words of Swami तन्मयानंद जी. स्वामी जी को और सभी को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम. Today I am very glad that I have got an opportunity to communicate with you all as add-on course committee coordinator of Shankarlal Khandelwal College. In today's education scenario, skill development is considered as the prime necessity for human resource development of our nation. Skills are of different types, hard skills and soft skills. Let's take an example. Dress designing. Dress designing is a hard skill, but the dress designer has to communicate with different customers. He has to handle different customers, and how to handle customers is a soft skill. So in order to be successful in the career of dress designing, both hard skill of designing a dress and soft skill of handling the customers, both these things are very important in order to be successful. Now our confidence is also directly related with the level of our skills. Let us say how. See, we are more confident if our strength is high, and the strength is directly related
to the soft skills and hard skills we possess and also the knowledge level. हमारे ज्ञान और कौशल्यों का स्तर जितना ऊंचा होगा, हमारा आत्मविश्वास भी बुलंद होगा. Swami Ji's famous quote is, "Strength is life and weakness is death." So my dear friends, सशक्त और समर्थ बनना है तो शारीरिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ ही जरूरी है कि मानसिक रूप से भी हम सशक्त हों, और मानसिक सशक्ति हम पा सकते हैं थ्रू लाइफ स्किल्स. आज हमारा सौभाग्य है कि आज यूथ डे पर एक ऑनलाइन लाइफ स्किल कोर्स का उद्घाटन होने जा रहा है. ये कोर्स करने से विद्यार्थियों के सोच को एक नई ऊर्जा मिलेगी और एक नई दिशा भी मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है. स्वामी जी कहते थे, ऑल द पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. तो सारी शक्ति दोस्तों हमारे अंदर है, हमें उसे पहचानना है और उसे जागृत करना है, उसे निखारना है. ये कोई 1 या 2 दिन का काम नहीं है, बल्कि आने वाले कई सालों की जर्नी होगी. मुझे यकीन है कि जीवन कौशल्यों का ये कोर्स इसी सफर पर हमें पल पल मदद करेगा और हमारी आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति को परिणाम कारक बनाएगा. आज के इस पावन घड़िये में मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करती हूँ कि इस कोर्स के लिए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपने आप को मजबूत, सशक्त और जो व्यक्ति अपनी छाप छोड़ता है ऐसा व्यक्ति बनाने की दिशा में, शिक्षा जीवन के लिए और जीवन राष्ट्र के लिए इस ध्येय की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाएं. जय हिंद. धन्यवाद मैडम. हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि आदरणीय स्वामी श्री तन्मयानंदा जी, सचिव श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम अंबिकापुर छत्तीसगढ़, आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं. स्वामी तन्मयानंदा जी सन 1985 में मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ के इंदौर संयंत्र में सेवा प्रदान करते हुए एवं इंदौर विश्वविद्यालय में MBA के अंतिम वर्ष में श्री रामकृष्ण विवेकानंद आदर्श एवं भाव आंदोलन के संपर्क में आए. उसी वर्ष अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल की शाखा आरंभ की गई और आप स्वामी विवेकानंदा जी के आदर्श के अनुरूप मनुष्य निर्माण एवं चरित्र निर्माण शिक्षा का प्रसार व प्रचार कार्य में प्रवृत्त हुए. आपने अनेक शिविरों का आयोजन कर हजारों युवकों को इस आंदोलन में जोड़ा. 1996 से 2004 के दौरान महाराष्ट्र के शेगांव में डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर अध्यापन कार्य करते समय आपके द्वारा उपरोक्त आंदोलन में तेजी लाई गई. 2004 में अध्यापन कार्य से त्यागपत्र देकर पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में आपने अपने आप को नियोजित किया. वो 2007 में संन्यास लेकर अंबिकापुर में आए. वर्तमान में श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा आश्रम अंबिकापुर में आप सचिव पद पर हैं और आश्रम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल के अतिरिक्त विभाग विभिन्न आध्यात्मिक एवं समाज सेवा के कार्यक्रम संचालित करते हैं. आपके द्वारा वेदांत पब्लिक ट्रस्ट नामक संस्था स्थापन कर उसके अंतर्गत होनहार बालकों के निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है. इस तरह स्वामी विवेकानंदा जी के आदर्शों को मूर्त रूप देने का प्रयास आपके द्वारा अनवरत जारी है और आज आप हमें मार्गदर्शन करने जा रहे हैं. हम आदरणीय स्वामी श्री तन्मयानंदा जी से अनुरोध करते हैं कि वे लाइफ स्किल्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट इस एड ऑन कोर्स का उद्घाटन करें एवं इस अवसर पर हमें संबोधित करें. ओम नमः श्री अतिराजाय
विवेकानंद सूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मेरे इष्ट देव भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। ये आज जनवरी 12 स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। आज से 167 साल पहले 68 साल पहले स्वामी जी का जन्म हुआ था, पर कल जैसा लग रहा है उनके जन्म को। इतना विविड मेमोरीज उनके हम लोग के दिमाग में हैं। ये जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है आज सारे, वो प्रत्येक 12 जनवरी को। वैसे रामकृष्ण मिशन में हम लोग तिथि के हिसाब से मनाते हैं, पर ये दिन को नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। अब देखिए 1985 में जब इंटरनेशनल यूथ ईयर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पालन हो रहा था, तो भारत में भी इससे पहले एक प्रश्न उठा था कि आइकन कौन रहेगा, युवाओं के प्रेरणा स्रोत के जो सिंबल किन को रखा जाए। बहुत ऑप्शंस आए हैं विभिन्न फील्ड से, लेकिन अंततः यही निर्णय लिया गया कि स्वामी विवेकानंद ही युवाओं के प्रेरणा स्रोत या आइकन या आदर्श हो सकते हैं। और तत्कालीन भारत सरकार ने उनको ही आइकन मानकर राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया, स्वामी विवेकानंद की जयंती को। अत्यंत गौरव की बात है ये, और इसका कारण भी है। सिस्टर निवेदिता, आई रिमेंबर कि स्वामी जी तो 1902 में चले गए थे। 1904 को सिस्टर निवेदिता राम बेलूर मठ में स्वामी जी का जन्मदिन पालन हो रहा है अत्यंत हर्षोल्लास के साथ। अभी भी 2 साल पहले स्वामी जी महासमाधि में लीन हुए हैं। सिस्टर निवेदिता उठ के खड़ी हुई और बोलते बोलते उन्होंने बताई कि हमको इस तरह का केवल उत्सव मनाने से नहीं होगा, अभी तो हमको उनके जीवन में जो रास्ता बता के गए हैं, जो पथ उनके हमको दिखा के गए हैं, उस पथ पर चलना पड़ेगा, तभी जाके राष्ट्र का कल्याण हो सकता है और अपना आत्मकल्याण हो सकता है। और प्रश्न पूछती है तो स्वामी जी क्या चाहते थे, और खुद ही प्रश्न करती है, क्या स्वामी विवेकानंद ये चाहते थे कि उनके पूज्य गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस क्या उनकी बातें सर्वत्र प्रसारित हो? नहीं, वो खुद बोलते नहीं। फिर सेकंड टाइम क्वेश्चन करती है, क्या वो चाहते थे कि अपनी खुद की स्वयं की जो बातें हैं, उनके जो उपदेश से या उनका निर्देश से उसको पालन करा जाए, चारों तरफ प्रचारित हो? बोलती ना, वो भी नहीं। तो फिर क्या चाहते थे स्वामी जी? और खुद निवेदिता बोलती है, ही वॉन्टेड ऑल ऑफ अस टू स्टैंड ऑन आवर ओन फीट एंड बी मैन। हम सब अपने पैर पर खड़े हो जाएं और मनुष्य बने। तो ये सिस्टर निवेदिता का हमको उपदेश, आदेश तो नहीं, अपील है कि हमको उनके पदचिन्हों पर चलना है एवं मनुष्य बनना है। मैन मेकिंग वॉज स्वामी जीज मेन मैसेज। मुख्य स्वामी जी बोलते हैं, माई मैसेज, मेरा जो मिशन है, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड मैन मेकिंग इज माई मिशन। सो आज जो हम पालन कर रहे हैं, और ये शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज अकोला के उनके जो विवेकानंद स्टडी सेंटर के उसमें ऑस्पिसेस में ये हो रहा है ये प्रोग्राम। मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि आज के दिन में उन्होंने ये प्रोग्राम जो उनका एड ऑन कोर्स करते हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, जो यूथ्स के लिए कर रहे हैं, उनका आज इनागुरेशन होना है। और हम ही को रिक्वेस्ट किया गया उसको इनागुरेट करने के लिए, ये तो बाद में होगा। तो अभी हम जानते हैं कि राष्ट्र निर्माण टॉपिक उन्होंने दिया है, चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्र के विकास में, उन्नति में या निर्माण में युवाओं के चरित्र को कैसे हम नियोजित करें, ये उनका टॉपिक है। उसी टॉपिक के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। हमको क्या करने का, राष्ट्र को महान बनने के लिए हमारा क्या लक्ष्य क्या है।
स्वामी जी के लिए राष्ट्र ही मुख्य था। सिस्टर निवेदिता बोलती है कि जब से मैं उनके कांटेक्ट में आई हूँ तब से उनके अंदर एक धधकता हुआ आग में अग्नि देख रही हूँ, जलता हुआ अंदर उनके हृदय के अंदर जल रहा है। प्रत्येक उनका बात से, उनके व्यवहार से, उनके चाल चलन से, उनके उपदेश से हमेशा एक राष्ट्र चिंतन आती है। तो राष्ट्र है, स्वामी जी बोलते हैं, नहीं निवेदिता बोलती है, ये उनके दिल के धड़कन में राष्ट्र था। और वो अन्यत्र बोली है कि स्वामी जी का जो जीवन का जो सारे संगीत है, संगीत का 3 मुख्य धारा है। बोलते कि शास्त्र, नंबर 2 गुरु, और 3rd हमारी भारत माता, मदरलैंड। तो शास्त्र स्वामी जी बहुत महान तो थे ही, ये चर्चा का विषय भी नहीं आज। और गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने, उन्हीं के कारण ही उनको तो ध्रुवतारा मानते थे स्वामी जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, जो हमारे इष्ट देव है और अवतार वरिष्ठ उन्होंने उनको कहा है। लेकिन 3rd मदरलैंड, ये भारत के मातृभूमि, उनका रोम रोम में, उनका प्रत्येक सिरा प्रसिद्ध धमनियों में खून के साथ मिलकर ये राष्ट्र का, भारत का चिंतन बह रहा था। तो ऐसे उनके क्या क्या उपाय हैं स्वामी जी। और बात एक चीज़ बताऊं मैं आपको कि वो महान थे, उनको अंतिम दिनों में, लास्ट डे में ना, मैं एक बात बताऊंगा आपको, 4 जुलाई 1902 में उन स्वामी जी का अंतिम दिन है वो। और उस दिन सुबह मंदिर में जाकर, रामकृष्ण मंदिर में जो पुराना मंदिर ऊपर है, आजकल तो नया मंदिर बन गया है, वहाँ जाके ध्यान किया, 3 घंटा ध्यान किया, दरवाज़ा बंद करके, खिड़की दरवाज़ा बंद करके। और ये अनयूजुअल था, वो ऐसा कभी नहीं करते थे। उसके बाद माँ काली का एक भजन गाया बहुत सुंदर, श्यामा माँ की अमर कालो। फिर उतरते उतरते सीढ़ी से उन्होंने अपने आप से कहा धीरे धीरे कि इट्स कल सलीलो कि धीरे धीरे बोला कि अगर एक और विवेकानंद होता तो जानता कि इस विवेकानंद ने क्या किया। लेकिन समय आने पर हजारों ऐसे विवेकानंद और जन्म लेंगे। इसको इनको गुरु भाई ने सुना था, स्वामी प्रेमानंद। वो सोचने लगे ये नरेन ऐसा क्यों कह रहा है कि एक और विवेकानंद होता तो ये देख लेता कि इस विवेकानंद ने क्या किया। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया उनको क्या पता था कि आज ही रात को स्वामी जी का शरीर चला जाएगा। तो स्वामी जी ने खुद बोला था, और ठाकुर रामकृष्ण देव ने एक बार वो बोलते हैं नरेंद्र के आने से पहले, नरेंद्र तब तक नहीं आया है, लेकिन उनके विजन में देखते हैं, ध्यान में जब हैं वो गंभीर ध्यान में एक उनका दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि। उसमें बोलते हैं रामकृष्ण देव, मैं धीरे धीरे मेरा मन ऊपर चला गया, ऊपर जाते जाते सभी को क्रॉस करते हुए अखंड के राज्य में पहुंचा। और वहाँ देखा केवल 7 ऋषि ध्यान कर रहे हैं, देहधारी, दिव्य शरीर उनका है, सब ध्यान मग्न है। और उसी में उस अखंड के राज सत्ता से एक छोटा सा शिशु पैदा हुआ, और ये शिशु जाके एक ऋषि के गले में हाथ डालकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुमको भी आना पड़ेगा। संसार अग्नि की ज्वाला में जल रहा है, तुमको आके उसको शांति देना पड़ेगा, शांति की वार्ता लेके आना पड़ेगा। बहुत सुंदर बंगाली भजन है, आमी जाई तुमिओ धराई नेमी ऐसो, आर्त धरणी वही कांदे हताशाय आशार भारता नहीं ऐसो। बहुत सुंदर भजन है, 2 स्टांजा और है उसके। तो तुम आशा की वाणी लेकर, आशा की वार्ता लेकर, और ये जो दग्ध संसार को, जलता हुआ संसार को तुम मार्ग दिखाओगे, तुम वो आग अग्नि को बुझाना तुम्हारा काम है, तुम आओ। और पूछा गया उनको कि शिशु कौन था, बोले शिशु मैं था। और वो ऋषि वही विवेकानंद होकर पैदा हुए हैं, वही स्वामी विवेकानंद हुए हैं, नर ऋषि। और उस वहाँ से, उस लोगों से नर ऋषि स्वामी विवेकानंद का होके, और नारायण खुद रामकृष्ण, नर नारायण का ये जो है मिलन है वो, एंड दैट मिलन क्या रंग लाया है, वंडरफुल, बहुत सुंदर है। तो ये रामकृष्ण की वाणी थी, और स्वामी विवेकानंद ने खुद बोला, और उनके महानता क्या उन्होंने किया है, बहुत बड़ा स्वामी जी का महान जीवन है मित्रों। और ऐसे व्यक्ति हमेशा पैदा नहीं होते हैं। सिस्टर क्रिस्टिन उनके शिष्या थी, अमेरिका की थी, बहुत स्वामी जी प्यार करते थे। उन्होंने इतने काम किया, निवेदिता, सिस्टर क्रिस्टिन, और कितने सारे ओली बुल और टैंटीन, उनके साथ जितनी फॉरेन जो महिलाएं थी,
कुछ पुरुष भी थे लंदन के, तो उन्होंने ज़बरदस्त स्वामी जी के लिए किया है। सिस्टर निवेदिता उनकी मेमोइर्स में, उनके स्मरणिका में लिखती है, एक शुरुआत करती है कि समय के दीर्घ अंतराल के बाद कभी धराधाम में कोई ऐसे पुरुष पैदा होता है जो इस लोक का नहीं होता है। वो किसी और लोक से आया हुआ रहता है, दिव्य लोक से आया हुआ रहता है, लेकिन जो आता है उस लोक का कुछ अंश, कुछ वार्ता, कुछ मैसेज यहाँ के लिए आता है। यहाँ आता है, हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में उसका सब चलना फिरना सब कुछ होता है ठीक हमारे जैसा। हमारे सुख में सुखी होता है, हमारे दुख में दुखी होता है, लेकिन वो कभी नहीं भूलता है वो कौन है, कहाँ से आया है और उसका आने का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है। और जिस राज्य से आया है उस राज्य महान राज्य है, महानता के चरम सीमा पर है। वहाँ आलोक के लिए सूर्य चंद्र की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो आलोकों का उत्स है, भंडार है। वो कोटि सूर्य, सहस्र कोटि सूर्य की उजाला वहाँ है और वहाँ से वो आता है। वो इस अंधकारमय हमारे जगत में आकर आलोक का संदेश लेकर आता है। वो हमेशा ऐसे व्यक्ति जन्म नहीं लेते हैं और वो ही वॉज ए क्लास बाय हिमसेल्फ, नो कंपेरिजन। उनकी तुलना किससे नहीं हो सकती, तुलना तो अपने एक क्लास में होती है, लेकिन ही वॉज ए क्लास अपार्ट, एक अलग व्यक्ति था। ये सिस्टर क्रिस्टिन का है। ये तो उनके सारे जब बताया, निवेदिता का, क्रिस्टिन का, ये सब उनके महानता है। अब प्रश्न है, हम आज कंसिडर करेंगे थोड़ा सा कुछ पॉइंट उनके बहुत सारे वाङ्मय से, उनकी जो कृतियाँ हैं उसमें से थोड़ी सी कुछ 2-4 पॉइंट क्या चाहते थे स्वामी जी। स्वामी जी का मैसेज था कि मैन मेकिंग, जैसे मैंने निवेदन किया, मनुष्य निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण की बात छोड़ दीजिए। स्वामी जी बोलते थे ये जो व्यष्टि ने समष्टि, जो राष्ट्र रूपी समष्टि है जगत, उसमें हम एक छोटा सा अंश है, एक कण है। हम अपने आप को व्यष्टि कहेंगे, तो व्यष्टि से समष्टि है। तो जब व्यष्टि ही ठीक है, हम अगर ठीक रहेंगे ऑटोमेटिकली समाज ठीक हो जाएगा। इसलिए स्वामी जी बोलते थे कि मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण हमें यहीं से शुरू हो। बहुत सुंदर कविता हम लोगों ने पढ़ा था, When there is light in the soul, there is beauty in the person. When there is beauty in the person, there is a harmony in the house. When there is harmony in the house, there is order in the nation. Or when there is order in the nation, there is peace in the world. सारे विश्व में शांति प्रतिष्ठा करने के लिए, सर्वत्र एक खुशनुमा माहौल बनाने के लिए मनुष्य को अपने आप को ठीक होना पड़ेगा। सो स्वामी जी बोलते थे, टेक केयर ऑफ दिस फर्स्ट। अंदर अगर शांति है, घर में शांति है, जगत में शांति है और विश्व में शांति है, चारों तरफ ऑर्डर ही ऑर्डर, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो स्वामी जी बोलते हैं कि मनुष्य निर्माण ही मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं आया हूँ। और अगर मनुष्य अगर हो जाएंगे, men these are wanted, everything else will come by itself। मनुष्य चाहिए और सब कुछ अपने आप हो जाएगा जब यही रहेंगे तो, क्योंकि सब करने वाले हम ही तो है ना, संसार है क्या, ऐसे ही हमारा मनुष्य का कुछ ये समाहार है क्या बोले। तो अगर मनुष्य निर्माण को स्वामी जी देते थे, चरित्र निर्माण ये हमको करना पड़ेगा और ये हो जाएगा तो स्वामी जी बोलते हैं कि सब अपने आप हो जाएगा, हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हमको चाहिए क्या, एक डायनामिक स्पिरिट। स्वामी जी कुछ गुण बताते थे, हमको चाहिए क्या, एक स्पिरिट चाहिए, एक अंदर एक जबरदस्त एक शक्ति चाहिए, एक जुनून चाहिए, स्पिरिट चाहिए। तो स्वामी जी बोलते हैं कि हम जब चल जाते हैं, कोई काम हाथ को उठाते हैं, कभी कभी एक तो हम सोए हुए हैं। स्वामी जी बोलते हैं कि हम अनंत वर्षों से हम सोए हुए हैं, सुप्त प्राय है, स्लम्बरिंग नेशन। स्वामी जी बोलते हैं कि साउथ में एक लेक्चर में इट्स अ स्लम्बरिंग नेशन, सो रहा है। क्या हम कभी सोचा है कि हजारों साल से ये हमारा 330 करोड़ लोग, मिलियन लोग, 33 करोड़ लोग, स्वामी जी बोलते हैं, ये लोगों को सैकड़ों सालों से क्यों फॉरेनर्स ने आके ये इसके ऊपर हमारे पर अत्याचार किया। डच आए, अंग्रेज आए, मुसल आए, मुगल आए, पठान आए, क्या कितने सैकड़ों साल तक एक के बाद आए, बिकॉज हम लोग यूनाइटेड नहीं थे। हमारे अंदर एक जो होना चाहिए ऐक्य, एकता, वो नहीं थी हमारे अंदर। कोई हमेशा हम लोग जो है ना
एकदम बिखरे हुए थे सब, आपस में यूनिटी नहीं थी कभी भी। तो इसके लिए हमको चाहिए यूनिटी, एकता चाहिए, और सभी मनुष्य एक होकर हमको उनके सभी का सामना नहीं कर पाए हैं। तब यही था, और चाणक्य के समय में भी यही था। चाणक्य देखेंगे आज से 2500 साल पहले चाणक्य ने कितना कोशिश की। अलेक्जेंडर कुछ 250-300 लोगों का साथ में लेके भारत में आया था, और उन्होंने सारे विश्व को अपने कितने जीता उन्होंने, भारत को बहुत प्रांत जीता उन्होंने। चाणक्य कोशिश करते रहेंगे कि हम एकत्र हो जाए, इकट्ठा हो जाए और उनका मुकाबला करें, लेकिन नहीं हो पाया, इकट्ठा नहीं कर पाए वो। ये ठीक अलग बात है कि अलेक्जेंडर चला गया बीच में छोड़कर विश्व साबे, लेकिन खैर ये एक उदाहरण केवल है। वी आर नॉट यूनाइटेड, वी आर नॉट, उस मनुष्यत्व का जो एक होना चाहिए, जो क्वालिटीज़ होने चाहिए, वो गुण हमारे अंदर नहीं था। तो स्वामी जी बोलते हैं कि स्पिरिट अप होना चाहिए। तो अगर काम लिए हैं, उठो, हम जो सो रहे थे, राइज, जागो, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। लक्ष्य हमारे लेके चले, ये लक्ष्य जब तक वहाँ नहीं पहुँचेंगे, लक्ष्य तक हम रुके ना, सोए ना कभी भी। सो अनवरत काम करता, कंसिस्टेंट हमको काम करते जाना है, कभी भी काम से विरत नहीं होने का है। तो राइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। लेकिन हम क्या होता है, हम सो जाते हैं, हम लोग अब बीच में रुक जाते हैं। पड़ाव ठीक है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। ये स्वामी जी का एक महान सेंटेंस है, राइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। फिर स्वामी जी बोलते थे कि हम लोग एक्सपांड तो करें, ये जगत बहुत बड़ा है, लोग बहुत हैं, तो हमको केवल खुदगर्जी जो सेल्फिश टेंडेंसीज अंदर नहीं रहे कि हम केवल अपना का ही सोचे, अपना ही सोचे और कुछ नहीं। तो समझे एक्सपांड करो। एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। संप्रसारण जीवन है, संकुचन मृत्यु है। हम अपने आप को संकुचित कर दिया है। ये घर के 4 दीवारें से मैं, मेरे पिता, मेरे माँ, मेरी माँ और मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, इतने में ही हम लोग रह गए हैं। वी डोंट लुक आउट। अभी मैंने बोला ना कि जगत जो है बहुत बड़ा है और सभी अपने हैं। ये सभी अपने हैं, ये भावना हमारे मन में आना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, ये मन में, ये प्रत्येक को करना चाहिए मित्रों। जो अभी हमारे युवा गण इसको सुन रहे हैं, मेरा एक अपील है कि धीरे धीरे आप हमारे जो छोटी सी 4 दीवारी से अंदर बाहर निकले। संसार बहुत बड़ा है, उसको देखें। तो एक्सपांड करें। एक्सपांशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ। प्रसारण कैसे करें? हमको सभी को अपना बनाए, सभी को गले लगाए, सभी मेरे हैं, सभी भाई है। तो हमको दें, हमको जो कि हम कुछ दे सकते हैं उसमें हम कभी विरत न हो देने में। तो गिविंग, गिव, दाओ फिरे नहीं चाओ। स्वामी जी बंगाली में कविता बोले हैं, उसको हमको रुकना नहीं है कभी भी। तो लौट के देखना नहीं हमको कि हमको कुछ मिला है कि नहीं, या मैंने क्या दिया। नो, गिव एंड फॉरगेट एंड आगे बढ़ जाइए। चरे बेटी आगे बढ़िए। तो ये स्वामी जी बोलते हैं कि एक्सपांशन इज लाइफ। संप्रसारण करें और संकुचन अपने आप को न करें। छोटे लेवल में, छोटे इसमें रंग न रख लें, एक दायरे में, दायरा बढ़ाए हमारा। बहुत सुंदर डेफिनेशन, एक परिभाषा स्वामी जी देते हैं उसके देश, इस सारे हमारे लोगों के लिए, राष्ट्र के लिए। फिर मैं बताऊँ, राष्ट्र लोगों के ही कॉम्बिनेशन है। तो स्वामी जी एक डेफिनेशन मनुष्य का देते हैं। मनुष्य क्या होना चाहिए? क्या सुंदर डेफिनेशन स्वामी जी का है। स्वामी जी बोलते हैं, मैन इज एन, मनुष्य इज एक असीम वृत्त है। मैन इज एन इन्फिनिट सर्कल which has no circumference, but the center is located at one spot. मनुष्य एक असीम ऐसा वृत्त है, सीमाहीन वृत्त है। वृत्त में एक परिधि होती है और परिधि के अंदर सारे जो पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिट पॉइंट्स, सभी वृत्त के अंदर आते हैं, बाहर का नहीं। लेकिन स्वामी जी बोलते हैं हमारा ऐसा वृत्त है, उसकी सीमा ही नहीं है और इन्फिनिट है। तो इन्फिनिट मीन्स उसके सारे पॉइंट्स जितने उसके अंदर है सब अपने ही हैं। ऑल द पीपल, जीव जंतु तक सभी अपने हैं। क्या ये भावना हम सोच सकते हैं? सब अगर अपने हैं तो मैं अपन पराया कैसे बोल सकता हूँ? जिसको दूसरों को अलग कैसे कर सकता हूँ? आई कैन नॉट एंड आई शुड नॉट। ये हो जाएगा, इमोरल हो जाएगा, मोरालिटी के बाहर हो जाएगा, नैतिकता के बाहर।
व्हाट एवर इज सेल्फिश इज इमोरल। स्वामी जी नैतिकता की परिभाषा देते हुए कहते हैं व्हाट एवर इज सेल्फिश दैट इज इमोरल, वो नैतिक है, एंड व्हाट एवर इज अनसेल्फिश, जो निस्वार्थपरता है, वो है मॉरल, नैतिक है। तो हमको अगर नैतिक बनेंगे, ठीक ठीक धार्मिक बनना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सभी को अपना बनाना होगा। ये माँ शारदा की भी बातें थी, लेकिन आज उसके बारे में नहीं करेंगे। तो ये समझ के स्पिरिट होना चाहिए, डायनामिक स्पिरिट होना चाहिए, डेडिकेशन। देन नेक्स्ट है समर्पण, पूर्ण समर्पण, अपने आप को समर्पित कर देने का है। स्वामी जी का एक बहुत सुंदर एक स्वदेश मंत्र करके हम लोग इसको गाते हैं। वो एक स्वामी जी ने एक 1899 में 1899 में एक उद्बोधन बंगाली पत्रिका है, मैगजीन है, तभी स्वामी जी के समय में निकला था वो। उसमें स्वामी जी बोलते हैं कि स्वदेश अंतिम जो पैराग्राफ है, हे भारत, ये परानुवाद, ये परानुकरण, परमुखापेक्षा, ये दास सुलभ दुर्बलता, ये घृणित जघन्य निष्ठुरता, यही मात्र दौलत के बल पर तुम उच्चाधिकार लाभ करोगे। यह लज्जित कापुरुषता से तुम वीर भोग्या स्वाधीनता लाभ करोगे। क्या पावरफुल वर्ड्स है। उसमें एक जगह है, तुम मत भूलना कि तुम्हारे जो आदर्श है वो उमानाथ शंकर है, और तुम्हारा धन, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा सब कुछ अर्पित भगवान के ईश्वर को, राष्ट्र को है, और तुम बचपन से ही, जन्म से ही माता के लिए बलि रूप में रखे गए हो। माता के लिए व्हिच मदर, डिवाइन मदर, और दिस मातृभूमि, जननी जन्मभूमि स्वर्गात भी गरियसी। तो ये मातृभूमि जो है, तो ये हमारे स्वर्ग से भी महान है। तो सब कुछ हमारा तन समर्पित, हमारा मन समर्पित, हमारा प्राण समर्पित, हमारा जीवन सब कुछ समर्पित होना चाहिए। दैट इज व्हाट स्वामी जी सेड कि ट्रेमेंडस ये जो पावर अंदर होना चाहिए, कि ये जो स्वदेश मंत्र है, माँ मेरी दुर्बलता, अंतिम बोलते हैं मेरी दुर्बलता, मेरी कापुरुषता दूर करो, मुझे मनुष्य बनाओ। ऐसा मनुष्य चाहिए, सारा राष्ट्र के लिए चिंतन करता है, एवरीथिंग। बहुत सुंदर स्वदेश मंत्र है वो। आप लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं जानते तो पढ़ लीजिए स्वामी जी का स्वदेश मंत्र। अब अकोला सेंटर से मेरे मित्रों से जो लोग ये कोर्स करेंगे, तो अकोला सेंटर से या हमारे रामकृष्ण आश्रम जो है बाईपास रोड में गीतानगर में है अकोला में, तो वहाँ से ले सकते हैं स्वदेश मंत्र। तो ये स्वामी जी का एकदम डेडिकेशन, अपने आप को समर्पित कर देने का है सब कुछ। राष्ट्र ही मेरे लिए है, अगर राष्ट्र नहीं रहा तो मेरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये है स्वामी जी के। देन ए पैशन होना चाहिए, पैशन एंड लव फॉर द इंडिया एंड इट्स पीपल। ये जो राष्ट्र प्रेम, लव फॉर पीपल, लोगों के लिए प्रेम, मैं पहले निवेदन किया हूँ। तो ये जो पैशन होना चाहिए कि हर व्यक्ति मेरा भाई है, उनके लिए होना चाहिए। तो स्वामी जी इसलिए बोलते थे कि मेरा खून अगर देना पड़े, मेरा प्राण भी अगर जीवन भी देना पड़े, मैं देने को तैयार हूँ, अगर उससे मेरे लोगों में कोई कल्याण होता है तो एक व्यक्ति को भी। स्वामी जी बोलते हैं कि इस जो नरक रूपी नरक कुंड में, संसार रूपी नरक कुंड में, हम अगर एक व्यक्ति को भी अगर थोड़ी देर के लिए उसका चेहरे में मुस्कान ला पाए, तो समझ लीजिए कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। दिस इज स्वामी जी। एक क्षण के लिए, एक व्यक्ति के लिए भी कुछ कर पाया तो उसका तो कल्याण हो जाएगा मेरे कारण। तो इस तरह के प्रेम होना चाहिए। और देश प्रेम स्वामी जी के अंदर कुट कुट के भरा था, राष्ट्र प्रेम। हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये हमारा कल्याण, राष्ट्र के लिए ही हमारा सब कुछ मर मिटना है। स्वामी जी ने ये बोला था कि देश प्रेम 1897 में जब स्वामी जी आए वापस, कहाँ, अमेरिका से लंदन होते हुए आए थे, जनवरी 15 को आके 1893 में गए थे, और करीब 4.5 साल के बाद आके पहुँचे थे 1897 में यहाँ, 4 साल के बाद। तो उन्होंने मद्रास में एक लेक्चर देते हुए भाषण के दौरान उन्होंने देश प्रेम के एक दिया था अवधारणा, देश प्रेम क्या होता है। वो बोला था, देखो, उनको प्रश्न किया गया था देश प्रेम के बारे में, बोले कि मेरे भावी सुधारकों, मेरे देशभक्तों, मैं भी देश प्रेमी हूँ, मैं भी देशभक्त हूँ, लेकिन देशभक्त का कुछ पैमाना मेरा है, कुछ मापदंड है। बोले 3 बातें होने से देशभक्त हुआ जाता है। नंबर 1, फीलिंग फॉर द पीपल, अनुभव करने की शक्ति। और स्वामी जी बोलते हैं, क्या तुम अनुभव करते हो कि ऋषियों के और देवताओं के करोड़ों संतान आज पशुतुल्य हो गई हैं,
क्या तुम अनुभव करते हो कि हजारों साल से भूखे हैं और आज भी भूखे हैं? क्या तुम अनुभव करते हो अज्ञान के काले बादल ने इस राष्ट्र को ढक लिया है? क्या यही तुम्हारा चिंता का विषय बन पड़ा है? क्या ये भावनाएं तुम्हारे रक्त में घुल मिलकर तुम्हारे सिरा और धमनी में प्रभावित हो रही हैं? और क्या इसके लिए तुम तुम्हारा स्त्री, पुत्र, समाज सबको भूल चुके हो? ये तुम्हारा नींद घर लिया है? ऐसे बहुत सारे बातें बोलते हैं। अगर ऐसा हो गया है, सोचो कि तुम देश प्रेम की प्रथम सीढ़ी पर केवल हो, प्रथम पायदान पर। फर्स्ट, रिपीट करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू पैट्रियटिज्म, राष्ट्र प्रेम के लिए। मान लीजिए, फिर बोलते हैं कि तुमने जान लिया, सबको तुम्हारे दिल में प्रेम है। क्या तुम उस सारे कुछ समस्या का समाधान तुम्हारे पास है? सारे बाधा विघ्नों को उल्लंघन करके तुम समस्या का समाधान ढूंढ सकते हो? ये सेकंड। और थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण, कि तुम जो जानते हो ये समस्या है, ये समाधान है, अगर इसको मैं करूँगा तो समस्या का समाधान हो जाएगा, तो तुम क्या जो सत्य समझते हो उसको करने के लिए साहस, शक्ति, सामर्थ्य तुम्हारे में है? अगर है तो समझ लो कि यही तुम्हारे 3 बातें हैं। सारी दुनिया अगर नंगी तलवार लेके तुम्हारे सामने खड़ी हो, तुम्हारा स्त्री, पुत्र, समाज, परिवार तुमसे रूठ जाए, तो भी क्या तुम ये सत्य समझते हो करने को आगे बढ़ोगे? अगर ये 3 बातें तुम्हारे में हैं तो तुम राष्ट्र प्रेमी कहलाओगे। मित्रों, आज हम कंपेयर करें, हम अपने आप के जीवन से, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कहूँगा, हमारे राजनीतिक नेताओं को देखिए जो हमारे राष्ट्र को चलाने के वादा करते हैं या दावा भी करते हैं, तो देखिए कितने लोग इस पैमाने पर इस पर उतर सकते हैं, खरे उतर सकते हैं। स्वामी जी ने जो 3 बातें दी हैं, रेयरली, वेरी रेयरली, गिने चुने, आप उंगली में गिन सकते हैं कितने लोग हैं। तो ये जो है स्वामी जी का राष्ट्र प्रेम है। देन ये जो लव फॉर द पीपल में स्वामी जी ने देखा कि हमको जो फीलिंग फॉर द पीपल, इसमें कैसा होना चाहिए, कैसा वो अनुभव होना चाहिए। एक वर्ड एम्पैथी, आप लोगों के इसमें अंतिम में बोलना था, लेकिन इसी समय में उसको बोल देता हूँ। एक वैल्यू है लाइफ स्किल्स में, एक वैल्यू है एम्पैथी। हम लोग सिंपैथी बोलते हैं ना। मैं साधुवाद देता हूँ अकोला के स्टडी सेंटर के जो कार्यकर्ताओं को, एवं विशेष करके निशा मैडम, डॉक्टर निशा वराड़े मैडम, तो वो एम्पैथी को ले, सिंपैथी नहीं ले, एम्पैथी लिया। एंड व्हाट इज सिंपैथी? सहानुभूति कहते हैं और सहानुभूति नहीं है। सिंपैथी होती है कि दूसरों का दुख देख लिया, कष्ट, मन में कष्ट हुआ है, हमने कुछ किया उसके लिए, फाइन, नो प्रॉब्लम्स, अच्छी बात है। लेकिन एम्पैथी क्या है? दिस इज रियली कॉल्ड सहानुभूति। एंड व्हाट इज सहानुभूति? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट मेरे मित्रों। सहानुभूति क्या होता है? उसको ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, सह अनुभूति, ये 2 पॉइंट होता है। सह अनुभूति, हमको उनके बीच में रहना है, उनके बीच में जाने का है। और जैसे एक भूखा व्यक्ति 3 दिन भूखा रहता है, उस भूख को हम नहीं जान पाएंगे, फीलिंग जब तो नहीं होगा, जब तो ठीक हम उसको एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अनुभव नहीं होगा, हम कैसे जानेंगे कि सामने व्यक्ति जो भूखा है उसको कैसा लगता होगा? तो स्वामी जी बोलते हैं कि सह अनुभूति, उसके साथ जाइए, उसके पास रहिए। जो भूखा है आप भी भूखा रहिए, वो 3 दिन भूखा है तो आप भी 3 दिन भूखा रहिए, तब आप जान पाएंगे। तो सह अनुभूति, सो ब्यूटीफुल, क्या सुंदर ये बातें हैं स्वामी जी की है। तो सुनते आके यू हैव टू गो टू देम, एक्सपीरियंस द सेम प्रॉब्लम, तब जाके दिल में आएगा कि यस, ये जो मैंने देखा है दैट इज ट्रू। देन आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से एक झरने की भांति फूट के निकलेगी इस आपके कंपैशन, करुणा, दया के भाव। और फिर आप कभी भी एक क्षण भी नहीं सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये आपका दिल, आपका जो जुनून जो है, आपको रास्ता बता देगी। तो ये सब, ये राष्ट्र प्रेम है, और स्वामी जी ने उसको किया। स्वामी जी किया है उस चीज़ को। ये तो लव फॉर द नेशन, बहुत और इम्पॉर्टेंट बाकी है पॉइंट स्वामी के राष्ट्र प्रेम के। ये जो भारत माता के लिए स्वामी जी ने क्या किया, हाउ वी लव्ड इंडिया। सिस्टर निवेदिता बोलती है कि भारत जो है स्वामी जी के, इट्स अ क्वीन ऑफ हिज एडोरेशन। उनके जो सम्मान के, कितने जिसको सम्मान करते हैं, उसका रानी थी भारत माता। ब्यूटीफुल, उनकी इसमें स्वामी जी के इसमें लिखती है, इट वॉज हिज क्वीन ऑफ हिज एडोरेशन। और भारत का कल्याण
या भारत की दुर्दशा या उसका कल्याण साधन करना, ये स्वामी जी का रात्रि का दुस्वप्न एवं दिवास्वप्न था। स्वामी जी हर क्षण दिवास्वप्न, दिन में भी देखते थे स्वप्न, और रात में दुस्वप्न होता था। बोलते थे रात्रि का दुस्वप्न एवं दिवास्वप्न स्वामी जी का क्या? राष्ट्र कल्याण। निवेदिता का जो वर्ड्स यूज करते हैं ट्रेमेंडस, ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं। तो ये उनका रानी है, भारत उनके रानी है। तो ये भारत की जो है। और स्वामी जी जब कभी भी ये जो स्वामी जी ने 3 साल, करीब 2.5 साल भारत की परिक्रमा किया, 1890 से लेके जुलाई के 1892 के दिसंबर तक, अंत तक कन्याकुमारी पहुंचे थे। ये जो दौरान स्वामी जी जो लाखों लोगों के बीच में रहे, कुटिया में, गरीबों की कुटिया में रहे, राजाओं के महलों में भी रहे, बड़े बड़े कई राजा उनके शिष्य थे, लेकिन उन्होंने देखा ये राजाओं के द्वारा बहुत कुछ कल्याण साधित नहीं हो सकता है गरीबों का, वो देने के लिए नहीं है। तथा कथित धनिकों से मुझे कोई आशा नहीं है, स्वामी जी बोलते थे। सो व्हाट इज आवर ड्यूटी? उस समय स्वामी जी ने दरिद्र लोगों से, मिडिल जो मध्यवित्त लोग हुए या गरीब दरिद्र व्यक्ति, उन्हीं से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कन्याकुमारी में जो निर्णय लिया था, उस शिलाखंड पर बैठ के 3 दिन कि मुझे पश्चिम जाना है और पश्चिम में जाके मुझे करना है। क्या काहे के लिए? यद्यपि उन्होंने सुना था कि वहाँ के विश्व धर्म महासभा हो रही है, लेकिन सभा उनके मुख्य उद्देश्य नहीं था। उनका मुख्य उद्देश्य था कुछ पैसा इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, उस ऐश्वर्यशाली राष्ट्र से, अमेरिका से हमको कुछ इकट्ठा करना है, लेना है। हमारे गरीबों को मुंह में 2 वक्त की रोटी देने के लिए, 2 रोटी देने के लिए हमको चाहिए पैसा। ये भावना उनकी थी। ये तो लीला भगवान की ऐसी है कि ये गौण हो गया और वो धर्म महासभा मुख्य हो गया, लेकिन स्वामी जी इसको कभी नहीं भूले हैं। अनंत में कितने बार स्वामी जी रोए हैं, आशीर्वाद किए हैं भारत के कल्याण के लिए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कितने बार किए हैं। तो ये सब बहुत सारे बातें, स्वामी जी की बातें करेंगे तो कम ये समय चला जाएगा। और हमें एक सब समझने की कोशिश करें, रियलिटी भारत की प्रॉब्लम्स क्या है। अगर राष्ट्र को महान बनाना है, राष्ट्र को डेवलपमेंट उन्नत करना है, तो उनका प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ेगा, कहाँ हमको स्ट्राइक करना है, व्हाट आर द वीक स्पॉट्स। ये जात पात का विचार बहुत बड़े विचार है, तब भी था और आज भी है। आज भी है जात पात का विचार। जात पात का विचार समाज से मिटा देना पड़ेगा। स्वामी जी तब बोले थे कि हमारे महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ी वीकनेस है इनइक्वालिटी, असमानता। तब भी था, किसमें? जात पात में था, पुरुष और नारी में था। स्वामी जी ने महिलाओं को बहुत उच्च स्थान दिया है। महिलाओं को नारी शक्ति, ये जैसे पक्षी 2 पंख में उड़ती है ना, तो दोनों पंख चाहिए, पुरुष और नारी का 2 पंख होने ठीक ठीक। अगर दोनों स्ट्रांग होंगे तब राष्ट्रपति पक्ष जो है, पक्षी है, ये ठीक उड़ सकता है। तो ये पक्ष दोनों को ठीक करना है, लेकिन राष्ट्र का जो घटक जो है, ये लोग जो है, उनके लिए भी हमको बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। देन पॉलिटिकल, सोशल, बहुत सारे इश्यूज है, धीरे धीरे अपने आप को सॉल्व करना है। देन मैन मेकिंग के बारे में है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा, थोड़ी सी 2 मिनट कर लें। मनुष्य राष्ट्र निर्माण कैसे करेंगे, चरित्र निर्माण युवाओं को बोलते थे। तुम कैसे मनुष्य चाहिए था उनको कि साहसी, निष्कपट, श्रद्धा संपन्न, वीर्यवान, माने शक्ति बने। तीनों शक्ति स्वामी जी चाहते थे हमारे इंसान के अंदर। 3 H उनको बोला जाता है इंग्लिश में, 3 H, हैंड, हेड एंड हार्ट। हमारा शक्ति, शारीरिक शक्ति, हैंड, हेड बौद्धिक शक्ति, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, देन हार्ट डेवलपमेंट, हार्ट, हृदय का विकास, प्रेम सभी के प्रति, सभी का। सब व्यक्ति भगवान है, सभी व्यक्ति ईश्वर है, सभी बहुरूपे। स्वामी जी बंगाली में एक सखार प्रति कविता है, बहुरूपे सम्मुखे तुम्हार छाड़ी कोथा खुजिছে ईश्वर, जीवे प्रेम करे जी जन से जन सेविছে ईश्वर। तुम्हारे सामने अनंत रूप में, हजारों रूप में, लाखों रूप में भगवान उपस्थित है। प्रत्येक जीव, जीव में ब्रह्म है, प्रत्येक ब्रह्म है। तो उनको तो छोड़कर, ये देवताओं को छोड़कर तुम कैसे जाके तुम ढूंढोगे? गंगा के किनारे खड़ा होके तुम कुआं खोदोगे पानी के लिए? ऐसा मत करो भाई, तुम सुबह सामने सभी की पूजा करो। स्वामी जी की जो ये लोगों को पूजा, सेवा, ये उस स्वामी जी ने सीखा था रामकृष्ण देव से।
शिव ज्ञान से जीव की सेवा, शिव ज्ञान से ईश्वर समझकर, ऐसा पैसा फेंक देना नहीं, कुछ नहीं, उनको ठीक ठीक भगवान समझ के ठीक ठीक सेवा करना है, ये स्वामी जी का हमारे को आदेश है। तो ये मनुष्य ऐसे ही बनना चाहिए कि कैसे कैसे हमको लोगों का कल्याण कैसे साधित हो सकता है। अभी समाप्ति की ओर आ रहे, बहुत बातें स्वामी जी के बारे में करना है मित्रों। राष्ट्र के लिए एक क्विकली बता दूं, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये जो स्वामी जी ने डायरेक्टली कभी भाग नहीं लिया था नेशनल उसमें, जो स्वतंत्रता आंदोलन में, जो हम तो पराधीन भारत था। स्वामी जी बोलते थे मैं चाहूँ तो भारत को कल स्वतंत्र कर सकता हूँ, लेकिन लोग कहाँ हैं, फॉर द पीपल टू टेक केयर। ठीक स्वामी जी बोले थे, लेकिन एक उदाहरण दिया था उन्होंने मद्रास में कि अगले 50 साल तक तुम सारी देवताओं देवियों को भूल जाओ, वो व्यर्थ के देवी देवता सो रहे हैं, तो किसको पूजा करोगे? इस जननी मातृभूमि को, भारत को। भारत माता तुम्हारे सेवा के योग्य, माने वही है तुम्हारी देवी हो, उन्हीं की ही तुम पूजा करेगा, और सारी व्यर्थ की देवी देवताओं को भूल जाओ। सी हिज ऑडेसिटी, उनके साहस देखिए, सारे देवताओं को बोलते हैं कि व्यर्थ की देवी देव भारत माता की पूजा करो। 50 साल 1897 में बात बोला था, और ठीक 50 साल में 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, लेकिन आज भी मनुष्य नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारा है। तो ये मनुष्य निर्माण के, तो ये जो अग्नि स्वामी जी इसलिए बोले थे, जो अग्नि हमारे अंदर जल रही है वो तुम सबके अंदर जल उठे, ये स्वामी जी का हमारे लिए था, उद्देश्य था। अब एक अंतिम, एक छोटी सी 1-2 पॉइंट खाली बोलने को बहुत है मित्रों, इस स्वल्प समय में बस संभव नहीं, लेकिन मैं अपील करूंगा और स्वामी जी को जरूर पढ़िए, उनके संक्षिप्त जीवनी एवं उनका कुछ उपदेश पढ़ें एवं उसको आत्मसात करें एवं अपने अंदर उसको ये करें, माने आत्मसात करके लेट अस प्रैक्टिस इट इन आवर लाइफ, तब देखिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आपका जो हो रहा है ये कोर्स शुरू हो रहा है, इस कोर्स में पॉइंट तो काफ़ी है, उसमें बहुत सारे लाइफ स्किल्स। एक तो एम्पैथी के बारे में मैंने बोल दिया है, वो सबके अंदर होना चाहिए, बहुत बड़ा क्वालिटी है। आज से आप शुरू करिए टू लव द पीपल। एक व्यक्ति के भी सेवा कैसे कर सकें आप, क्या दे सकता हूँ मैं, हैं तन से, शरीर से सेवा कर सकता हूँ, धन से कर सकता हूँ, मन अगर है तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर हम अच्छे स्टूडेंट है उसको कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो गरीब जो है, आज भी 46-50% लोग कुपोषित है। आज भी हमारे राष्ट्र में धीरे धीरे कम जरूर हो रहा है, लेकिन अभी करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको रोटी ठीक मिल नहीं रहा है। हम जानते हैं मित्रों, हमारे आदिवासी इलाका में रहता हूँ मैं, जब अंदर जाता हूँ कैसा होता है। दिस इज एम्पैथी, दिस वैल्यू मस्ट कम। आएगा तो बहुत सारे हमारे जीवन का की समस्या समाधान हो जाएगा। एक डिटर्मिनेशन एक लूँ, संकल्प शक्ति। ये अंतिम पॉइंट ले रहा हूँ मैं, पॉइंट बहुत है। संकल्प शक्ति मैं करूँगा, छोटा छोटा संकल्प लिया करिए। बहुत बड़ा संकल्प भगवान बुद्ध ने लिया था। सिद्धार्थ जब बैठा था वहाँ उस बड़ा वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, उन्होंने संकल्प लिया था, बहुत बड़ा महान संकल्प, और उनके ज्ञान प्राप्ति के बारे में है। लेकिन हम छोटे छोटे स्टार्ट विद द मिनिमम, प्रैक्टिस द इजीएस्ट। छोटा संकल्प लें और सहज हो, और उनको कर पाए, उसका सक्सेसफुल सफल हो पाए, देन धीरे धीरे हमारा साहस बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी। एक कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मैं बोल नहीं पाया, स्वामी जी का एक बहुत बड़ा गुण स्वामी चाहते हैं कि विश्वास, अपने पर भरोसा। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे संभव है, मुझसे अनंत है, मैं उस अनंत का पुत्र हूँ, मैं उस असीम जो है आत्मा में, परमात्मा आत्मस्वरूप हूँ। इट इज हिज मेन मैसेज। आई कुड नॉट स्पीक ऑन दिस। स्वामी बोलते हैं कि तुम्हारे जो अंदर की जो शक्ति है, आत्मशक्ति है, प्रचंड शक्ति है, सर्वशक्तिमान हमें, सर्वविद्यमान है, सर्वज्ञ है, सच्चित आनंद स्वरूप है, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, सब कुछ जानते हैं। अनंत शक्ति, अनंत वीर्य हमारे अंदर है। ये सब होने के बाद भी व्हाई आई एम वीक, मैं दुर्बल क्यों हूँ मैं, ये होना नहीं चाहिए हमको। तो इस तरह के छोटे छोटे मैं ये करूँगा। यस, फ्रॉम टुडे लेट मी स्टार्ट। धीरे 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 वो बढ़ेगा। देन इस टाइम विल कम, डेफिनेटली हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मैन कैन डू, कौन करेगा इसको? मनुष्य के अंदर भगवान ने ऐसा सृष्टि में हमको बनाया है
दिस मोस्ट, उसका मैनिफेस्टेशन जो है सबसे द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन इन मैन, मनुष्य को बना के गॉड वॉज हैप्पी। यस, तो ये एक संकल्प शक्ति, बाकी आपके डिसीजन मेकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं। एक लास्ट में एक कविता का 2 लाइन ये बोलकर मैं समाप्त करूँगा। वो कविता बहुत सुंदर कविता का है, उसमें अंतिम लाइन है, जीवन कर्म सहज भीषण है, उसका सब सुख केवल क्षण है, यद्यपि लक्ष्य अदृश्य धूमिल है, फिर भी वीर हृदय हलचल है, अंधकार को चीर अभय हो, बड़े साहसी जग विजयी हो। अंधकार को चीर अभय हो, अभय उनका बहुत बड़ा गुण स्वामी जी बोले थे, अंधकार को चीर अभय हो, बड़ो साहसी जग विजयी हो, बड़ो साहसी जग विजयी हो। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अकोला के सारे अधिकारियों को, उस स्टडी सेंटर के शंकर लाल खंडेलवाल कॉलेज के प्रिंसिपल साबू जी को और उनके समस्त कार्यकारिणी को। एवं मैं इसके साथ, मेरे को बोला गया था इसके इनॉग्रेशन करने के लिए, मैं अत्यंत प्रसन्न हृदय से आज के आपके जो कोर्स आज से शुरू होने वाला है, मैं उसका उद्घाटन करने का मेरे जो गौरव प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए अति आनंदित हूँ। और आई डिक्लेयर दिस प्रोग्राम इज ओपन फ्रॉम टुडे, आज से 12 जनवरी 2021 से आपका कोर्स का शुरुआत हो, इस तरह की मैं घोषणा करता हूँ। पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ। और ठाकुर माँ स्वामी जी, रामकृष्ण देव, माँ शारदा स्वामी जी के चरणों में मेरी प्रार्थना है कि आप सभी का कल्याण करें, अभी सभी के ऊपर आशीर्वाद का वर्षण करें एवं आपको ऐसा शक्ति, साहस, सामर्थ्य दें कि उन्हीं की वाणी पर चलते हुए आप जगत का कल्याण कर सकें, आत्म कल्याण कर सकते हैं, भारत राष्ट्र का कल्याण कर सकते हैं, राष्ट्र का ठीक ठीक निर्माण कर सकें। मैं पुनः सबको धन्यवाद मेरी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त वाणी के विराम देता हूँ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद आधुनिक युवाओं के लिए एक सार्वभौमिक आदर्श हैं। उनके उपदेश आज भी प्रतिध्वनित करते हैं और प्रेरणा के 12 मासी स्रोत प्रदान करते हैं। उन्होंने अपनी युवा अवस्था के अल्पकाल के दौरान मानवता के कल्याण, प्रगति और आध्यात्मिक उत्थान के लिए इतना कुछ हासिल किया और योगदान दिया कि इतिहास में उनकी कुछ कम समानताएं हैं। धन्यवाद स्वामी जी। It indeed was a treat to hear you, Swamiji. I am sure your guidance will definitely help students to grow a powerful personality as anticipated by Swami Vivekananda. Thank you once again. Now, I would like to invite my colleague, Professor Dimple Mapari Madam, NSS Coordinator, to propose a formal vote of thanks. Thank you, Madam. It is always delightful to listen to Honorable Tanmayanandaji's thoughts, and it is motivational as well. And today it was no exception. I extend my deep felt sense of gratitude towards Honorable Tanmayanandaji for his motivational words that will inspire our youth for many years to come. Thank you once again, sir. On behalf of Swami Vivekananda Study Center, Counseling Cell and NSS unit of our college, I extend my deep felt gratitude towards the President of Shikshan Prasarak Mandal, Honorable Taratai Hatwalne, for her guidance and motivation. I also thank Honorable Gopalji Khandelwal, Secretary, Shikshan Prasarak Mandal, for his incessant support and motivation in organization of such events. The captain of the ship, Honorable Principal Dr. J.M. Sabu sir, is always there whenever a new endeavor is in its making. I also thank Honorable Principal for his constant guidance in organization of this event. I would also like to extend my gratitude towards Dr. Aarti Deshpande Madam, Coordinator, Add-on Course Committee, for making this course on life skill for self-empowerment happen, and today it is inaugurated. Thank you so much, Madam. On this occasion, I also thank Professor A.V. Thote and his technical team for making this happen online for their technical support. I thank all the NSS volunteers, Swami Vivekananda Study Center students, and all those parents and students who are watching this on YouTube. Thank you so much. Thank you once again.